Hello everyone and welcome to this video. In this video, we will continue our discussion with the lookup and reference functions category. We have already covered so far VLOOKUP with match. Now in this video, we will discuss about HLOOKUP. So if you can see, we have a table in which lookup values are coming in the top row and the remaining data is coming below it. So in this kind of situation, we have to use function called HLOOKUP. It is very similar to VLOOKUP only. The only difference is the data is transposed. Okay, the data is horizontal. So lookup value will be this, comma. Table array is this, comma. When you are taking the table array, you have to see that lookup value should come in the top row. Like in case of VLOOKUP, the lookup value comes in the very first column on the left side. But in HLOOKUP, the lookup value should come in the top row. That means if lookup value is, let's suppose, certain name like Verma, then the table array will be from here to here. If lookup value is some serial number, let's say serial number 6, then the table array will be this. Now the lookup value is employee ID, then table array will be this. Please keep in mind this thing, comma. Like in case of VLOOKUP, here we need row index number. Okay, in VLOOKUP we need column index number. In HLOOKUP we need to provide row index number. So row index number will come based on salary. So salary is coming in the third row. But instead of writing 3 manually, I'll get it with the help of match function. If you type 3 manually, then the function will not be dynamic. To make it dynamic, we have to get row number with the help of match function. So now the serial lookup value for match is salary, comma. Lookup array will be from employee ID to designation, this left column. You should not include serial number into the array. Why? Because अगर serial number आपने array में include किया तो match के लिए salary 4th नंबर पे होगा, लेकिन HLOOKUP के लिए salary 3rd रो में होगा. मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपने सीरियल नंबर को इंक्लूड किया एरे में मैच के लिए तो मैच के लिए सैलरी 4th नंबर पे है, लेकिन HLOOKUP के लिए सैलरी 3rd नंबर पे है. तो आप सीरियल नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज. अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक ब्रैकेट और लगा देते हैं. सीधा नहीं, पहले आप कॉमा लगा के 0 लिखिए, क्योंकि HLOOKUP को भी रेंज लुकअप चाहिए. तो ब्रैकेट क्लोज. अब HLOOKUP क्या करेगा, KS1236 को गिवन एरे के अंदर टॉप रो में लेफ्ट टू राइट देखेगा. टॉप रो के अंदर लेफ्ट टू राइट, तो वो देखेगा कि एम्प्लॉय आईडी KS12360, इसकी थर्ड रो का डाटा उठाएगा. थर्ड रो का डाटा क्यों? क्योंकि मैच बताएगा कि सैलरी इसमें 3rd नंबर पे आ रहा है. तो थर्ड रो का डाटा क्या आपका 11,000. अब कंट्रोल डी और कंट्रोल आर करने से पहले क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे. तो B13 पहले है ये, तो कंट्रोल डी अगर मैं करूंगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से रेफरेंस चेंज करेगा, वो करना चाहिए, बट इसका कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए. तो इसके बी पे डॉलर लगा दीजिए. ठीक है, ये रेंज है, इसको पूरा लॉक कर देंगे. उसके बाद है C11 है सैलरी, तो ये नीचे नहीं आना चाहिए. C11 क्या है, C11 है ये सैलरी, तो ये नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आगे जा सकता है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसकी रो लॉक करेंगे, कॉलम लॉक नहीं करेंगे, और इसको पूरा लॉक करेंगे. ठीक है, कंट्रोल आर. तो देखिए यहाँ पर जाएंगे तो ये रेफरेंस इसका चेंज होकर आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि इसका हमने कॉलम लॉक किया था. ये सैलरी से डेजिग्नेशन में क्यों आया, क्योंकि कॉलम लॉक नहीं किया था, रो लॉक करी थी. एक बार मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ. एक बार इसका ना कॉलम लॉक कर देता हूँ. अब कंट्रोल आर करता हूँ तो देखो क्या हुआ, वो सैलरी से जंप करके डेजिग्नेशन पे आना चाहिए लेकिन नहीं आया. क्यों? क्योंकि गलती से हमने इसका कॉलम लॉक कर दिया. ठीक है, तो वापस जाएंगे, सी का डॉलर हटाओ और रो पे लगाओ, और कंट्रोल आर और फिर कंट्रोल डी. यहाँ पर ये एरर आ रहा है क्योंकि 12404 इसकी टॉप रो में कहीं नहीं है. ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही F2 होम IFerror एंड कॉमा इनवर्ट कॉमा 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज. थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप दोबारा सुन सकते हैं. कंट्रोल डी कंट्रोल आर. ठीक है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया HLOOKUP फंक्शन. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शन कॉल्ड इंडेक्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.